Noun. I hope you will understand noun because you all are aware from noun. Everyone teaches you from your childhood that this is noun and there is some kind of definition for noun. So today we are going to learn noun. So let's start. Okay. So basically noun is a name. Name of everything. What is present in this universe? Name of all things is called noun. So there is a basic definition. Noun is a name of person, place, or thing. This is called noun. And how noun works? So with verb, it acts as subject, object, or a complement. Subject, object, or complement. With verb, it acts as subject, object, or complement. But with preposition, it acts as object. So this is clear to all of you, I hope. And now we have to understand that what kind of nouns are there. So there are five kinds of noun. So there is a trick by which you can learn types of noun. So this is the trick. PM account. That's it. This is the trick. So P for proper noun, M for material noun, A for abstract noun, C for common noun, and another C for collective noun. So this is a trick by which you can understand and learn. PM account. P for proper noun, M for material noun, A for abstract noun, C for common noun, C for collective noun. And then after that, after describing these all things, I will describe it later. But first of all, I have to tell you that countable noun and uncountable noun. So countable means C. Countable comes from the letters. It starts from C. There are only two words which starts from C. So countable noun will consider these two. Uncountable noun, these remaining two will come under uncountable noun. This is single one. So we don't have to count a person because this is a single one. So we can't count it. We don't have to count it because this is single. Otherwise, if you want to count it, it can be under countable noun. But for the single one, we don't have to count it. ओके सो दिस इज द रीजन वाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. जो सी वाले होते हैं वो काउंटेबल नाउन में आते हैं. सी वाले कौन? सी फॉर काउंटेबल नाउन. और सी से कौन कौन से होते हैं? कलेक्टिव और कॉमन. इसलिए ये काउंटेबल में आ जाते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन वाले बचे कौन से? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट. ये सी से नहीं होते हैं तो ये किस में आ जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएंगे. और ये प्रॉपर नाउन जो होता है प्रॉपर ही होता है, मतलब इकलौता होता है. तो एक अगर है कोई भी चीज़ तो उसको कितना गिनोगे? अगर एक से ज़्यादा होता तो गिनते एक ही है. जैसे तुम्हारी जेब में 1 रुपये या एक ही नोट है, कोई भी चीज़ इकलौती है तो उसको कितना बार बार थोड़ा ना गिनते रहोगे आप. तो ये हो जाएगा. अगर इसको रखना चाहेंगे तो काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन इसको नहीं रखते क्योंकि इकलौता होता है. अब इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो इतनी बेसिक सी डिफिनेशन हो गई.
अब एक एक के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग कि प्रॉपर नाउन क्या क्या होते हैं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन, इसमें क्या आते हैं? पार्टिकुलर नेम्स आते हैं। पार्टिकुलर नेम हो गया, जैसे कोई भी नाम रख सकते हैं। अब अपना नाम रख सकते हो, जैसे कोई भी नाम हो सकता है। मेरा फेवरेट नेम, I have to think it because I don't have any favorite names. So, should I write that name? No, I don't have to write it here. So, proper name, particular names. I have a favorite student. Her name is Pari. So I will write it here, Pari. And after that, Pari is a particular name of a person. So that's a Pari. And after that, I can write Ganga. So these are the particular names, proper noun like Pari. परी किसी इंसान का नाम है, और गंगा नदी का नाम है, पार्टिकुलर नदी का नाम है। ताजमहल एक बिल्डिंग है, मोनूमेंट है, उसका नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है। पाकिस्तान एक कंट्री है, और हिंदी एक लैंग्वेज है। कुरान एक बुक है, पार्टिकुलर बुक है, जिसको जैसे अगर बुक बोल दिया जाएगा तो बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर कुरान बोला जाएगा तो यही बुक, जैसे इंडिया गेट है और थ्री इडियट, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। अब अगर कॉमन नाउन को कंसिडर, कॉमन नाउन नेम ऑफ टाइप्स, कॉमन नाउन हो गया तो ये क्या होता है? नेम ऑफ टाइप्स होता है। इस परी क्या है? एक मेरी स्टूडेंट है। गंगा क्या है? रिवर है। ताजमहल क्या है? बिल्डिंग है। पाकिस्तान क्या है? कंट्री है। हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है, टाइप्स हो सकते हैं ना इसके। कुरान क्या है? बुक है, बहुत सारी बुक हो सकती है। इंडिया गेट क्या है? मोनूमेंट है। थ्री इडियट क्या है? मूवी है, बहुत सारी मूवीज हो सकती है। इट इज, यानी ये नेम ऑफ क्या है? टाइप्स है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। जैसे मूवी में थ्री इडियट मूवी हो सकती है, और बहुत सारी मूवीज़ हो सकती है, जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन हो सकती है, फास्ट एंड फ्यूरियस हो सकती है, जो मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं वो ये हो सकती हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या शो करता है? कलेक्शन शो करता है, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स में क्या हो? कॉमन, कॉमन एट्रीब्यूट्स, यानी गुण क्या हो इनमें? समान। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कॉमन एट्रीब्यूट्स, यानी गुण क्या हो इसमें? कुछ समान हो। जैसे क्लास हो गया, क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो पढ़ने के लिए आएंगे, यानी उस क्लास में जो भी सिलेबस वगैरह पढ़ाया जाएगा उनका पार्टिकुलर सेम होगा। कॉमन एक्टिविटीज हो गया, जैसे फैमिली हो गया, फैमिली में जो परिवार होंगे उनमें एक रिलेशनशिप होता है। ज्यूरी हो गया, टीम हो गया, ये कलेक्शन शो करते हैं। और इनके गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी ज्यूरी वाले जितने मेंबर्स होंगे उनका काम क्या है? कलेक्शन रिजल्ट दिखाना। टीम में होगा जितने भी मेंबर्स होंगे सबके मतलब एक टीममेट की तरह से परफॉर्म करेंगे। कमेटी हो गया, उसके भी सेम कॉमन होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कलेक्शन होता है, लेकिन सेम चीज़ों का कलेक्शन। बंच हो गया, फ्लॉक, फ्लॉक हो गया, हर्ड हो गया, ये सेम चीज़ों का कलेक्शन होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कलेक्टिव। इनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, यानी गुण जो होते हैं इन सब के क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए इनको एक कॉमन कलेक्शन मिला के इनको एक कलेक्टिव के फॉर्म में रख लिया जाता है, इनको कलेक्ट करके। इसलिए इनको कौन सा नाम बोला जाता है? कलेक्टिव नाम बोला जाता है। उसके बाद मटेरियल नाउन,
इसमें क्या होते हैं, पदार्थों के नियम वगैरह होते हैं। तो कुछ भी लिख सकते हो, पदार्थों के नियम, कोई भी पदार्थ हो गए, पेय पदार्थ, कुछ भी चीज़ जो हो गई पदार्थ। मटेरियल नाउन होता है, इसमें क्या होते हैं, पदार्थों के नियम होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, कोई भी चीज़ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी हैं सब। जैसे गोल्ड हो गया, ये भी मटेरियल है। आयरन हो गया, ये भी मटेरियल। क्लॉथ, जो कपड़ा यूज़ करते हो आप किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो लेदर वगैरह हो गया, प्लास्टिक हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, सब क्या होते हैं, ये पेपर हो गया, ये सब क्या है, मटेरियल है। ओके, जैसे पेपर हो जाएगा, पेपर जिस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है उसको काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो। तो उसके इंग्रेडिएंट्स को, वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है कि उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, उसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। अब इसके अलावा जो आएगा वो कौन सा बचा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लेते हैं हम लोग। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम ऑफ फीलिंग्स होता है, क्वालिटीज़ होता है, स्टेट्स होता है, एक्शंस होता है। यानी इनको, ये इनटेंजिबल होता है, यानी इन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे पेन है, दर्द कितना हो रहा है, आप छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। जॉय, जैसे खुश होते हो तो कितना खुश हो, कोई पूछता है हाँ कितना खुश हो, तो उसको मतलब काउंट नहीं कर सकते कितना खुश हो। जेलसी, जिसे नाराज हो किसी से, जेलस, जलन है तुम्हें किसी से, तो भी कितनी है, नहीं, ये सब चीज़ों को तुम काउंट नहीं कर सकते या छू नहीं सकते हो। इतनी ऐसे याद करो कि इनको हम छू नहीं सकते। ये इमोशंस होती है, फीलिंग्स होती है, क्वालिटीज़ होती है, स्टेट होती है किसी की कि वो सैड है, होते हैं, स्टेट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं। जैसे ये इंटेंजिबल होता है, मतलब इनको हम छू नहीं सकते। जैसे पेन हो गया, जॉय हो गया, जेलसी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ब्रेवरी हो गई, चाइल्डहुड हो गया, पावर्टी हो गई, स्लेवरी हो गई, वार हो गया, डांस हो गया, लाफ्टर हो गया। इन सब चीज़ों को हम नहीं छू सकते, इनको महसूस किया जा सकता है, या स्टेट हो सकती हैं, एक्शंस हो सकते हैं। ये इंटेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल मतलब इनको छुआ नहीं जा सकता। जैसे पेन है, तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द है, जैसे होता है ना इंसान को दर्द, हर इंसान दर्द में होता है। अपन लोग भी हैं, लेकिन बस यही है कि सो नहीं होता है कि हाँ है या नहीं है। तो कितना है वो पता नहीं है, मे बी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी क्रिटिकल कंडीशन ऐसी चल रही है कि कुछ कह नहीं सकते कितना ज़्यादा दर्द है या पेन है, बट है। बस जो लोग हंसते रहते हैं उनके अंदर बहुत सारा दर्द होता है, बट कहना नहीं चाहिए। ये अपनी पर्सनल बातें हैं, पर्सनल बातें यहीं रहने देनी चाहिए। अब जैसे जॉय हो गया, तो कितना खुश होते हो आप लोग, जॉयफुल रहते हैं ना, किसी जैसे तुम्हें कुछ चीज़ मिल गया कि हाँ मुझे ये चाहिए था, मुझे ये मिल गया, तो बहुत आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है उसके लिए। जेलसी है, किसी से तुम जेलस फील कर रहे हो कि अरे ये बंदा बहुत तरक्की कर रहा है, ऐसे कुछ नए काम कर रहा है जो तुम करना चाहते हो, तो तुम उससे जेलसी होती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हर इंसान में होती है। ब्रेवरी बहुत होनी चाहिए इंसानों में। चाइल्डहुड हो गया, बचपना हो गया, ये कि छू सकते थे क्या अपने बचपने को, कोई जाके कितना अच्छा होता था कि क्लास बंक करते थे, इधर से जाते थे, उधर से जाते थे, टीचर को परेशान करते थे, हालांकि अब टीचर बनना पड़ रहा है। पावर्टी, गरीब, कोई बंदा गरीब होता है तो कितना गरीब है, बोलते हो क्या कि ये बंदा 2 किलो गरीब है, 3 किलो गरीब है, ऐसा हो नहीं सकता। स्लेवरी, दास, जो गुलाम बने रहते हैं, कितने गुलाम हो, तो किसी के गुलाम हो, जैसे होते हैं ना हर तरीके के गुलाम पाए जाते हैं अपने समाज में, जो कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है, जाने वाली बात है। वार हो गई, डांस हो गया, लाफ्टर हो गया, बोलते नहीं डांस, डांस देख सकते हो क्या, जो बोलते हैं हम डांस देख रहे हैं, डांस नहीं देख सकते। वार, वार देखते हो क्या कभी, मान लो दो इंसानों की वार हो रही है, लड़ाई हो रही है, या बहुत ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, वो आपस में वार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो तुम वार देख रहे हो या इंसानों को लड़ते हुए देख रहे हो। ऑब्वियसली तुम लोग इंसानों को लड़ते हुए देख रहे हो, तुम लोग वार नहीं देख रहे हो, तो वो नहीं होता है, वो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होता है। डांस, तुम डांस देख रहे हो, डांस करते हुए इंसान को देख रहे हो। लाफ्टर, हंस रहा है जब वो देख रहे हो, वो नहीं देख रहे हो, तुम हंसते हुए इंसान को देख रहे हो। तो ये सब क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, इनको छू नहीं सकते। कोई हंस रहा है तो तुम छू लोगे कि हाँ ये हंसी है, मैं इसे छू रहा हूँ, हंसी इतनी बड़ी है या खुशी इतनी बड़ी है, ये। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो हमने आज ये पढ़ लिया है। ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने इंटरेक्ट किया, बीच बीच में कट करना पड़ेगा, देखते हैं कैसा जाता है क्या नहीं होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें रही, थैंक यू।